new publications in the vocational paper series. They are available for a very nominal sum also. I just read out the titles. In the History and Society series, paper numbers 23 and 24, Leela Mukherjee, The Northern Bay of Bengal, 800 to 1500 of the Common Era, A History Apart. Richard Hart, An Unmanageable Encounter, The Meeting of Religions and Cultures in Chicago, 1893. The other series, Perspectives in Indian Development, there have been two papers. Refugees and Migrants in South Asia, Asia and Implications, by Partha and Ghosh. And Perspectives in Indian Development, number 11, Mapping Literature, Culture and Region Formation in the Brahmaputra Valley. Also, few announcements. On Tuesday, the regular Tuesday seminar, Anil Nauria, Senior Fellow of the NMML, will be speaking on English Anti-Imperialism, The Varied Lives of Willie Pearson. 11th September is a public lecture in the Science, Society and Nature series by Professor Shiv Vishwanathan of the O.P. Jindal Global University, Sonepat, Haryana. He is speaking on impending battle, science and democracy. On the 12th of September, which is Thursday, the other series, India and the Wider World, we have Mr. T.N. Nainal, eminent journalist, Jawaharlal Nehru Fellow, speaking on the subject, India in a Changing Asia. And on Friday, in the public lecture series, Rethinking History, all of these are at 3 p.m. and they're all in this room. Very eminent scholar, Professor Suzy Saru, from the English and Foreign Languages University, Hyderabad, speaking on A Small History of Health. Following Tuesday, Dr. Jaya Tyagi of Sri Venkateshwara College, on retrieving women's agency from Puranic tradition, representation and presentation of women in the Master Mahapurana. On the 18th of September, we have a distinguished woman scientist who has been recently awarded the Borlaug Prize for 2012, Dr. Aditi Mukherjee, in the Science, Society and Nature series. Dr. Mukherjee is from the International Water Management Institute, and the subject is An Evergreen Revolution in Eastern India, Are We on the Right Track? जैसा कि आप जानते हैं, हर महीने और अगले साल से हर महीने में 2 बार हमारी हिंदी में गोष्ठियां होती हैं, और मैं शुक्ला जी और हमारे अन्य साथियों का आभारी हूं कि उनके सौजन्य से और कठिन परिश्रम के वजह से यहाँ कई जाने हुए लेखक, समाज सेवक, पत्रकार और समाज शास्त्र के पाठी आए हुए हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि आज डॉक्टर अस्मिता काबरा हमारे बीच हैं। आप अभी अम्बेडकर विश्वविद्यालय में पढ़ा रही हैं, स्कूल ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी में। इसके पूर्व कई सालों तक आप रामदास कॉलेज के इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में थी। आपने अपना पीएचडी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से खत्म किया था, और खास करके विस्थापन के विषय पर शायद ये कहना सही होगा कि बहुत कम ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने न केवल इस विषय पर लिखा हो, इसको चर्चा हो, इस पर उनके लेख छपे हैं, आपकी किताब पर भी आप काम कर रही हैं, लेकिन इनका उन समुदायों के साथ काफी गहरा नाता रहा है जिनको विस्थापन की वजह से बहुत भारी परिवर्तन मानने पड़े, और अपनी छोटी सी संस्था द्वारा सहारा जनजाति के लोगों के साथ वो अभी भी काम कर रही है। आधारशिला नामक जो उनकी छोटी सी संस्था है, उसने एक बहुत बढ़िया किस्म से एक स्कूल की स्थापना ही नहीं की है, लेकिन उसको चलाए रखा है। विकास, विस्थापन और विकल्प बहुत कम विषय है शायद आज के समाज में जिस पर इतना विवाद चल रहा है। विकल्प किस तरह का हो? क्या विकल्प का मतलब ये है कि विस्थापन नहीं होना चाहिए? क्या विकल्प का मतलब ये है कि विकास की जो परिकल्पना है, जो रूपरेखा है, उस पर ही नए किस्म से सोच विचार करने की जरूरत है? इस पर न केवल भारत में लेकिन विश्व के कई देशों में बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, और किसी भी विवाद में समझ की जरूरत है, और समझ के लिए शोध जरूरी है। तो मैं बहुत चीजें कहना चाहता हूं, लेकिन मैं जानता हूं आप भी मेरे जैसे उतावले हैं, क्योंकि डॉक्टर काबरा पूरी तरह से तैयार है और हमें बताना चाहते हैं विकास, विस्थापन और विकल्प के बारे में अपने सोच विचार और शोध के परिणाम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ
नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी की कि मुझे यहाँ के इस विषय के बारे में बात करने के लिए मौका दिया जा रहा है। और उससे भी ज्यादा मेरा आभार डॉक्टर महेश रंगराजन के प्रति है, जिनकी वजह से मेरे ख्याल से इस विषय पर मैं जितना भी काम कर पाई हूँ, जब मैंने ये काम शुरू किया था तो मैं खुद नहीं जानती थी कि मैं इस पर इतना आगे काम करूंगी, जितना जो ज्यादातर और बहुत हद तक महेश जी की के प्रोत्साहन की वजह से हुआ है। जैसा कि महेश ने कहा, विकास, विस्थापन और विकल्प काफी बहस का मुद्दा है। मैं अपने व्याख्यान में आज कुछ थोड़ा बहुत थ्योरी के नजरिए से बात करूंगी और ज्यादा कोशिश करूंगी कि जो मैंने शोध किया है उसके द्वारा मैं कुछ इन मुद्दों के ऊपर शायद कुछ नया कह पाऊं, जो अमूमन इस बारे में नहीं कहा जाता है। विकल्प के बारे में मैं शायद बहुत कुछ नहीं कह पाऊंगी, इसके अलावा कि इस मुद्दे को देखने के भी वैकल्पिक तरीके हैं। जिस तरह से इसको देखा जाता है और जिस तरह से इस बहस को जिन टर्म्स में किया जाता है, उससे ज्यादा और कई अलग अलग तरह के नजरिए हैं जिनसे इसको देखने की जरूरत है। और अगर हम उसको दूसरे नजरियों से देखेंगे तो शायद वैकल्पिक समाधान भी नजर आएंगे इस परेशानी के। तो अगर इस मुद्दे को समझने की जरूरत है तो उसमें सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि विस्थापन विश्व भर में काफी बड़ा मुद्दा है और प्रत्येक वर्ष काफी बड़ी संख्या में कई लोग और खासकर दूरस्थ, ग्रामीण, सीमांत यानी मार्जिनल समुदायों से लोग विस्थापन की वजह से अपनी आजीविका को खो देते हैं। विश्व बैंक, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन ऑन रेफ्यूजीज और कई अन्य बड़ी संस्थाओं ने इस समस्या से जूझते हुए लोगों का आंकड़ा लगाने की कोशिश की, आंकलन की कोशिश की है कि कितने व्यक्ति इससे हर साल इस समस्या को झेलते हैं। और जो नंबर वहां से आ रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, उनके हिसाब से ये बहुत बड़ी समस्या है। प्रति वर्ष विश्व बैंक के अनुसार 1 से 1.5 करोड़ लोग दुनिया भर में विकास की परियोजनाओं के द्वारा विस्थापित किए जाते हैं और ये विश्व बैंक की फिगर है। तो और लोगों के हिसाब से ये आंकड़ा शायद इससे ज्यादा ही हो, कम ना हो। तो प्रतिवर्ष 1 से 1.5 लोग। 1980 से ये प्रक्रिया बहुत ज्यादा तेज होती जा रही है और हिंदुस्तान में विकास हेतु विस्थापन से कितने लोगों के ऊपर असर हुआ है, इस पे काफी शोध हुआ है। जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं उसमें काफी बहस भी है, लेकिन अमूमन माना जाता है कि 1 से 4 करोड़ लोग भारत में स्वतंत्रता के बाद से इस विस्थापन से अफेक्ट हुए हैं और इसमें से एक बहुत बड़ी संख्या का सही पुनर्वास नहीं हुआ है, ये भी शोध द्वारा दर्शाया जा चुका है। तो विस्थापन के कई कारण होते हैं, जैसा इस विषय के शोध ने दिखाया है। हम सब नर्मदा घाटी में हुए विस्थापन के बारे में जानते हैं। बड़े बड़े बांध बनना विस्थापन का एक बहुत बड़ा कारण है और बांध की जो टेक्नोलॉजी है, इस तकनीक से ही आप समझ सकते हैं कि जो डूब का क्षेत्र होता है वो काफी बहुत बड़ा होता है और उन इलाकों से लोगों को हटा के वहाँ पे पानी जमा किया जाता है। तो ये विस्थापन का एक बहुत बड़ा कारण है और सबसे ज्यादा बहुचर्चित भी है। ज्यादा से ज्यादा शोध भी बांध से हुए विस्थापन पे हुआ है, लेकिन और भी कारण है विस्थापन के। खदान, खनिज जो निकाले जाते हैं, माइनिंग एक बहुत बड़ा कारण है। और अब एक और कारण, मैं सब कारणों का लिस्ट नहीं बना रही हूँ, लेकिन कुछ जो बड़े बड़े इसके विस्थापन के उदाहरण है वो दे रही हूँ। और जिस एक और विषय से और जिस और एक कारण से विस्थापन होता है, जिसपे मेरा अपना शोध काफी आधारित है, वो है वन्य जीव संरक्षण के कारण से होने वाला विस्थापन। तो क्योंकि जंगलों को जंगली जानवरों के लिए सुरक्षित किए जाने का प्रयास किया जाता है, तो उसमें इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपने जंगल के घरों से निकाला जाता है और उनका विस्थापन होता है। तो विस्थापन के कारण कई हैं और शुरुआती शोध जो था विस्थापन के बारे में, वो
भौतिक विस्थापन पर ध्यान दिया करता था, यानी कि अपनी मर्जी के खिलाफ लोगों को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर बसने के लिए मजबूर किया जाना या प्रोत्साहित किया जाना। तो जैसा कि विस्थापन शब्द ही बताता है, ये स्थान पे निर्धारित परिभाषा है। जब किसी को एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पे भेजा जाता है मुआवजे के साथ या बिना मुआवजे के साथ, लेकिन उनकी मर्जी के खिलाफ, तो ये स्थान आधारित परिभाषा विस्थापन की होती है। लेकिन पिछले कई दशकों में विस्थापन के और अलग प्रकार के विस्थापनों को भी सामने लाया गया है, और ये जो दूसरे किस्म का विस्थापन है इसे इकोनॉमिक डिस्प्लेसमेंट यानी कि आर्थिक विस्थापन कहा जाता है, जो जिसमें आपको एक स्थान से दूसरे पे चाहे ना लेके जाया जाए, आप जहाँ हैं वहीं बने रहें, लेकिन उधर उस स्थान पे पाए जाने वाले संसाधनों पे आपकी पहुंच अगर खत्म हो जाती है तो उसको भी विस्थापन माना जाता है। विश्व बैंक भी अपनी विस्थापन की जो डेफिनेशन है उसमें इसको अब मानता है। तो आर्थिक विस्थापन की जो परिभाषा है वो पहुंच या एक्सेस पर निर्धारित परिभाषा है। तो इन दोनों परिभाषाओं को अगर मिला लिया जाए और तब विस्थापन के आंकड़े जोड़े जाएं तो शायद जो मैंने पहले कहा कि हर साल 1 से 1.5 करोड़, उससे कहीं ज्यादा इस समस्या का रूप बन जाता है। और आर्थिक विस्थापन के कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। आपने जैसे पिछली तस्वीर देखी तो जब कोई बांध बांधा जाता है तो डूब में आने वाले लोगों का विस्थापन होता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान भेज दिए जाते हैं। लेकिन नदी का बहाव रोकने से जो बांध के नीचे रहने वाले मछुआरे समुदाय हैं उनकी आजीविका जाती रहेगी। वो एक आर्थिक विस्थापन का उदाहरण हुआ। दूसरे किस्म का आर्थिक विस्थापन है कि जो विस्थापितों को नई जगह पे बताया जाता है, तो जिन समुदायों के पास उनको बताया जाता है उनको हम होस्ट कम्युनिटी या मेजबान समुदाय के नाम से जान सकते हैं। तो उन समुदायों की अपनी जो संसाधनों की पहुंच है वो भी कम हो जाती है। तो इस तरह के उदाहरण आप आर्थिक विस्थापन में के तहत सोच सकते हैं। तो मेरा जो शोध है वो मध्य प्रदेश राज्य में श्योपुर जिले में है, जो आप देखेंगे लाल रंग से वहां मार्क किया हुआ है। तो श्योपुर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर का इलाका है, जो चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में से बहती है। तो ये चंबल का कमांड एरिया है, और कूनो नदी जो चंबल की एक ट्रिब्यूटरी है, उस नदी के किनारे बसे हुए समुदाय के साथ मैं काम करती हूँ, जो सहरिया जनजाति से जो सहरिया जनजाति के लोग हैं ज्यादातर। तो श्योपुर मध्य प्रदेश, जो कि चंबल ग्वालियर चंबल संभाग का भाग है, इस इलाके में मेरा मुख्यतः काम है। और इस व्याख्यान में मैं अपने 2 शोध और उसमें से निकले हुए रिजल्ट के बारे में बात करना चाहूंगी। एक तो जो मैंने अपने पीएचडी के लिए डॉक्टरल काम किया था, जो 1999 के करीब शुरू किया था, और 2004-05 तक मैंने फील्ड में शोध किया उसके बारे में। तो पहली मेरी केस स्टडी जो है वो कूनो वन्य प्राणी अभयारण्य से निकाले गए 24 गांवों का शोध है। और यहाँ मैंने जो पहले किस्म का विस्थापन आपको बताया, यानी कि भौतिक विस्थापन, लोगों को एक स्थान से हटा के इस अभयारण्य के बाहर एक इलाके में बसाया गया, तो इस पुनर्वास से उनकी आजीविका पे क्या प्रभाव पड़ा, ये मेरा पहला काम था। दूसरा जो मैंने अभी हाल ही में काम खत्म किया है वो है जिस मेजबान समुदाय के आसपास इन गांवों को बताया गया, तो उस मेजबान या होस्ट कम्युनिटी के ऊपर क्या असर पड़ा, जिसके भी रिजल्ट मैं आपके सामने अभी प्रस्तुत करना चाहूंगी। और इससे जुड़ा हुआ एक और काम जो मैं अभी अपने कुछ अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ कंप्लीट कर पाई हूँ, वो है कि यही विस्थापित गांव जो 24 गांव बाहर आए थे, जो 1999 से 2001 के बीच में बाहर आए थे, तो अब इस बात को 10-12 साल बीत चुके हैं। तो 10-12 साल बाद अगर हम उनकी आजीविका को दोबारा देखते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन आए हैं। तो एक तो उनकी आजीविका विस्थापन से पहले क्या थी, विस्थापन के फौरन बाद उनकी आजीविका किस तरह से दोबारा बनी और उसमें क्या फायदे और क्या नुकसान हुए, और फिर 10 साल बाद उस आजीविका में क्या असर हुआ। तो ये 3 शोध और इनके रिजल्ट मैं आपके सामने बताना चाहूंगी। तो अगर हम
इसको समझने की कोशिश करें कि विस्थापन के प्रभाव क्या होते हैं और उसको किस चीज से असर होता है, विस्थापन के प्रभाव किन चीजों से निर्धारित होते हैं, तो हम 3 बड़े फैक्टर्स या कारक सोच सकते हैं जिससे विस्थापन का असर या प्रभाव समुदायों के ऊपर निर्भर करता है। एक तो हम सोच सकते हैं कि जो समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान पे लाए गए हैं, तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो पीछे क्या संसाधन छोड़ जाते हैं अपनी पुरानी जगह पे। तो जो संसाधन छूट गए हैं वो एक जरूरी कारक है। कुछ संसाधन लोग अपने साथ ले जाते हैं, जैसे कि मेरे क्षेत्र में चंबल में जो पूर्व के विस्थापित बाहर गए तो वो अपने साथ कुछ अपने घर के सामान ले जा सके, कुछ ने तो अपने दरवाजे खिड़कियां अपनी झोपड़ियों में से काफी सामान साथ लेके गए। कई चीजें हैं जो आप जब इंसान बाहर जाता है तो उसको जो हुनर होते हैं, जो स्किल्स होती है, वो भी वो अपने साथ बाहर ले जाता है, जो उसकी नई आजीविका बनाने में असर करते हैं। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोग पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन तो पहला कारक जो है छोड़े गए संसाधन, उसके बदले में लोगों को मुआवजा मिलता है। जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है भारत सरकार का, उसके तहत जो संसाधन आप नहीं ले जा सकते हैं, जिनको इस कानून के तहत इमूवेबल एसेट्स कहा जाता है, तो उनके बदले में मुआवजा मिलता है। तो मुआवजे की प्रक्रिया एक कारक हुई। फिर जो वो बाहर ले जाते हैं, उन हुनर, उन संसाधनों की बाहर कितनी आवश्यकता है और उनको वो किस तरह से अपनी आजीविका में ढाल सकते हैं, वो दूसरा कारक हुआ। और तीसरा हुआ कि नए स्थान पर उनको किस तरह के संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं, जो रिहैबिलिटेशन पैकेज यानी कि पुनर्वास की जो पॉलिसी है और उनको उसमें से किस तरह से पुनर्वास दिया जा रहा है उस पर निर्भर करता है। तो जब मैंने अपना शोध किया तो इन 3 कारकों पर ध्यान देने की कोशिश की कि ये किस तरह से जमीन पर उतारे जाते हैं। तो सवाल ये जो महेश ने कहा कि ये इतना बहस वाला मुद्दा क्यों है। अगर ये कारक ही विस्थापन के असर को निर्धारित करते हैं, प्रभाव को निर्धारित करते हैं, तो इनको तो गिनना और इनको मापना मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग पहले क्या करते थे और उनमें से क्या चीजें वो बाहर प्राप्त कर सकते हैं, इनको गिनना मेरे ख्याल से समाजशास्त्रियों, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, इनके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो फिर ये इतना बहस वाला मुद्दा क्यों बना। और मेरे हिसाब से मुद्दा बहस वाला एक तो इसलिए बना क्योंकि ये जो मापन होता है ये किया ही नहीं जाता है, या किया जाता है तो बहुत जल्दी में किया जाता है, बहुत सलीके से नहीं किया जाता है। और दूसरा इसलिए कि मेरे ख्याल से जो 2 गुट हैं जो जिनके बीच में ये बहस सबसे ज्यादा चलती है, परियोजना चलाने वाले या उसके पक्ष में जो लोग हैं उनमें, और जो विस्थापितों के लिए बात करने की कोशिश कर रहे हैं उन 2 पक्षों के बीच में बहस इसलिए भी है क्योंकि उनकी विकास की अवधारणा में काफी बड़ा विवाद है। तो जिस बहस को मैं आपके सामने रखना चाहूंगी बहुत छोटे में, वो बहस हम मैनेजर्स या मैनेजरियलिस्ट यानी कि प्रबंधनकारी जो है उनके और आंदोलनवादियों के बीच में यानी कि एक्टिविस्ट के बीच में इस बहस को देख सकते हैं। तो विस्थापन की जो बहस है वो आंदोलनवादियों और प्रबंधनवादियों के बीच में है, बिटवीन द मैनेजरियलिस्ट एंड द मूवमेंटिस्ट। और उस बहस को न सिर्फ इन 3 कारकों से जोड़ा जाना चाहिए, परंतु उनकी विकास की अवधारणा से भी जोड़ा जाना चाहिए। तो जो आंदोलनवादी नजरिया है उसके अनुसार विकास की ये जो अवधारणा है, जिसके तहत परियोजनाएं लाई जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों को निकाला जाता है अपनी जगह से और दूसरी जगह भेजा जाता है, वो जिस तरह से विकास को देख रहे हैं या इमेजिन कर रहे हैं, वो विकास की अवधारणा ही विनाशकारी है, जिसमें लोगों की भूमि और संसाधन की एक होड़ लगी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को बाहर निकाला जाता है। और इसका परिणाम नकारात्मक ही हो सकता है अगर विकास की ये परिभाषा है। तो लोगों की ऑटोनॉमी, उनके स्वत्व का हरण इस प्रकार के विकास में होके ही रहेगा, ऐसा आंदोलनवादियों का अमूमन मानना है। अब प्रबंधनवादी जो लोग हैं, जिसमें काफी तरह से समुदाय जुड़े हुए हैं, आप प्रोजेक्ट मैनेजर्स के बारे में सोचें या जो सरकारी अफसर हैं जो विस्थापन के लिए एक्चुअली जमीन पे जो जिनकी जिम्मेदारी विस्थापन का काम करना होता है, उनके विचार में लगभग ज्यादातर जब उनकी लिखाई आप पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं कि विकास को उन्नति के से जोड़ा जाता है। विकास
पर सवालिया निशान नहीं लगाया जाता है, पर वो ये मानते हैं कि विकास की परियोजनाएं लाने से लोगों का विस्थापन होता है और उस विस्थापन से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए भी हस्तक्षेप जरूरी है, पर वो उस अवधारणा के ऊपर सवाल नहीं लगाते हैं। तो जो प्रबंधनवादी नजरिया है उसके बारे में मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहूंगी, क्योंकि उसमें विस्थापन के कुप्रभाव जो होते हैं उनका मापन किस प्रकार से होता है उसके बारे में कई तरह के शोध हुए हैं, कई तरह के फ्रेमवर्क, मॉडल, ढांचे बनाए गए हैं जिसके द्वारा इसको नापा जा सकता है। और जो सबसे प्रसिद्ध ढांचा है जिसको विश्व बैंक, एडीबी और बहुत सारी परियोजनाओं को फंड करने वाली संस्थाएं इस्तेमाल करती हैं, वो माइकल चर्निया का इम्पॉवरिशमेंट रिस्क एंड रिकंस्ट्रक्शन ढांचा कहलाता है, जिसको आप निर्धनता संकट की तरह मान सकते हैं कि विस्थापन से होने वाले जो समुदाय विस्थापित होते हैं उनको विस्थापन की वजह से कुछ बहुत सीधे सीधे संकट महसूस होते हैं जो उनको निर्धनता की ओर लेके जा सकते हैं। और प्रबंधनवादियों के हिसाब से इन संकटों से उबरना और इनसे जूझना संभव है यदि हम विधान यानी कि लॉ, नीतियां, पॉलिसी, विस्थापन के प्रोसेसेस जो हैं, जो प्रक्रियाएं हैं और उससे होने वाले परिणामों के ऊपर ध्यान दें। तो प्रबंधनवादियों के हिसाब से विस्थापन से नुकसान होता है, इसको पहले से जांचा जा सकता है और परियोजना चलाने वालों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो इन नुकसानों की भरपाई करें। और इसके लिए जो माइकल चर्निया ने ढांचा तैयार किया उसमें 8 किस्म के निर्धनता संकट काफी इनके ऊपर काफी ध्यान दिया गया है और ये संकट मैंने आपके सामने लिस्ट किए हैं। तो उनके हिसाब से विस्थापन की वजह से लोगों को अलग अलग तरह के निर्धनता संकट आ सकते हैं, जैसे कि उनका घर छिन सकता है, निराश्रय हो सकते हैं, वो बेरोजगारी, भूमिहीनता, और न सिर्फ उनके संसाधन छिन सकते हैं मगर उनके जो आपस की परंपराएं हैं, उनका जो आपस में मेल जोल है वो भी हट सकता है, जिसको आप मार्जिनलाइजेशन यानी कि सामाजिक अव्यक्तता के तौर पे देख सकते हैं। वो एक निर्धनता संकट है। और इसके अलावा उनको उनकी जो आपस में संगठित होने की शक्ति है वो भी जा सकती है, जिससे उनका मुख्य धारा से कटाव हो सकता है। तो जो विस्थापन के शोध पिछले कई 20-25 साल में हुए हैं, उन्होंने इस प्रकार के ढांचे को लेके और कई शोध किए हैं, न सिर्फ भारत में परंतु बहुत सारे देशों में, जिसमें उन्होंने ये जानने की कोशिश की है कि इन 8 पहलुओं पे किसी भी परियोजना से किस तरह के नुकसान होते हैं। अब ये ढांचा जो है ये आंदोलनकारियों के अनुसार काफी नहीं है, क्योंकि इस ढांचे में 8 ही तरह के नुकसान गिनाए जाते हैं। ये 8 नुकसानों के अलावा भी बहुत सारे नुकसान लोगों को हो सकते हैं, उनको नहीं गिनाया जा सकता है। खास तौर से जो अमूर्त, इंटेंजिबल नुकसान लोगों को होते हैं विस्थापन की वजह से, लोगों की परंपराओं का हनन हो सकता है, उनके मूल्य बदल सकते हैं, उनके अधिकार छिन सकते हैं, कौन से लोग विस्थापन और पुनर्वास के पात्र माने जाते हैं और कौन से नहीं माने जाते हैं, इससे लोगों को कष्ट पहुंच सकता है, उनके जो पारंपरिक ज्ञान है उसका नुकसान हो सकता है, ट्रेडिशनल नॉलेज का, और ये सब चीजें ये IRR ढांचा नहीं गिनता है। तो एक तो इसका जो इसके ऊपर जो प्रतिक्रिया लोगों ने की है वो ये की है कि ये कुछ ही नुकसानों को गिनता है, कुछ ही संकटों को गिनता है, बाकियों को नहीं गिनता। दूसरा और ज्यादा ठोस मुद्दा जो है इस मॉडल के बारे में, इस ढांचे के बारे में, वो ये है कि संकट अपने आप नहीं उत्पन्न होते हैं। निर्धनता संकट उत्पन्न होते हैं राजनीतिक कारणों से। जो बृहद वैश्विक आर्थिक प्रक्रियाएं हैं जिस संदर्भ में विस्थापन किए जा रहे हैं, चाहे वो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस हो, वैश्वीकरण का, या सरकार की जो बड़ी नीतियां हैं, उनके बारे में ये ढांचा लगभग मूक है, वो उनके बारे में कुछ नहीं बोलता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो IRR ढांचे का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म जो है वो ये है कि वो विस्थापन की प्रक्रिया से नजर हटा लेता है और पुनर्वास के ऊपर ध्यान देता है, लेकिन विस्थापन के कारण जो है,
किसने किया, क्यों किया, किसकी मर्जी चली, किसकी बात नहीं सुनी गई, इस तरह के मुद्दों पे ध्यान नहीं देता है। और इसलिए वो इस समस्या को राजनीति से हटा के और प्रबंधन की समस्या बना देता है, मैनेजमेंट की समस्या बना देता है, जबकि ये समस्या लोगों के हकों और राजनीति से जुड़ी हुई है। तो ये इसका इस बहस का एक तरह से सबसे मूलभूत ढांचा है। और मैं जब अपना शोध कर रही थी और अब जो मैं प्रस्तुत करूंगी उसमें मैंने इन ढांचों के द्वारा, इन नजरियों के द्वारा तो विस्थापन को देखने की कोशिश की ही है कि क्या आंदोलनकारियों की बात में ज्यादा दम है या कि प्रबंधनकारियों की बात में ज्यादा दम है या कि उन दोनों के बीच का कोई नजरिया देखा जा सकता है कि जो इन दोनों की बात को एक तरह से सिंथेसाइज कर सके या उनका संश्लेषण कर सके। तो और ऐसा सिर्फ मैंने नहीं किया है, विश्व बैंक और बांध बनाने वाली जो बड़ी संस्थाएं हैं उन्होंने और बांध के खिलाफ काम करने वाले आंदोलनकारियों ने मिलकर इसके बारे में वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम यानी कि विश्व बांध आयोग के तहत ऐसा ही करने की कोशिश की थी, इसी प्रकार का सिंथेसिस करने की कोशिश की थी। और वो इसलिए जरूरी था, उस पे ध्यान देना इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्होंने कुछ बातें प्रबंधनवादियों की मानी, जैसे कि उन्होंने माना कि जरूरी नहीं है कि हर तरह की परियोजनाएं हमेशा सीमांत समुदायों का नुकसान ही करे, लेकिन उन्होंने आंदोलनवादियों की तरह इस विश्वास को भी माना कि विस्थापित लोगों को भागीदारी मिलनी चाहिए पुनर्वास की प्रक्रिया में, उनके विचारों को भी ध्यान में लिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार के कुछ अटेम्प्ट किए गए हैं, इस तरह के कुछ शोध हुए हैं। तो जब मैं अपने कार्यक्षेत्र में IRR ढांचे को और आंदोलनवादी ढांचों को देखने का प्रयत्न करती हूँ, तो मैं पाती हूँ कि जमीनी सिचुएशन जो है, जो स्थिति जमीन पर है, वो इन दोनों का एक अजीब सा सम्मिश्रण है। और वहां से आपको जो आंकड़े मिलते हैं और जो समझ मिलती है वो कुछ हद तक दोनों नजरियों और दृष्टिकोणों का समर्थन करती है, लेकिन कई ऐसी चीजें उठा के दिखाती है आपको जिससे आपको इन ढांचों को दोबारा देखने की भी आवश्यकता महसूस कराती है। तो जो मेरा 2012 का शोध, जो मेरा PhD का काम था, जिसको मैंने अभी दोबारा रिविजिट किया, वहां से मैं आपको कुछ आंकड़े दिखा रही हूँ और उसके द्वारा मैं आपको इन दोनों नजरियों के जो गैप्स हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगी। तो मैं माफी चाहती हूँ, मैं इसको हिंदी में अनुवाद नहीं कर पाई थी इस टेबल को। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि हमने 3 समय पे विस्थापित लोगों की आजीविका का मापन किया। जो पहला रो है उसमें आपको विस्थापन से पहले शहरिया आदिवासी समुदाय की आय कितनी थी, आमदनी कितनी थी, उसके बारे में जानकारी मिल रही है। और हमने पाया कि लोग अपनी आमदनी कई अलग अलग स्रोतों से पाते हैं। कुछ वो खेती से आमदनी पाते हैं, कुछ NTFP यानी कि वन्योपज के को जमा करके और उसको बेच के आमदनी पाते हैं, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से मजदूरी भी करते थे ये लोग। और औसतन एक शहरिया परिवार विस्थापन से पहले यानी कि करीब 1998 या 1995 से 98 वाले समय में औसतन 30-31 हजार रुपए सालाना एक परिवार कमा पाता था मेरे कार्यक्षेत्र में। तो जब विस्थापन हुआ कुनो अभयारण्य से, जो कि आपको दूसरी रो में नजर आ रहा है कि विस्थापन के फौरन बाद जब हमने इन्हीं गतिविधियों में लोगों की आय को गिनने की कोशिश की, तो हमने पाया कि खेती तो लगभग बर्बाद हो गई लोगों की बाहर आके। तो जहां एक परिवार औसत 6,000 रुपए खेती से कमाता था साल भर के, और आप ये ध्यान दें कि 6,000 रुपए सालाना कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं है, लेकिन वहां से हट के खेती की आय 1,000 रुपए के करीब हो गई। और कई परिवार ऐसे थे जो खेती में एक्चुअली पैसे गंवा रहे थे कमाने के बजाय। जंगल से वनोत्पाद से सबसे ज्यादा आय लोग पाया करते थे कुनो अभयारण्य में, क्योंकि आदिवासी शहरी आदिवासी कई तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस वनोपज
जमा करके बेचा करते थे, लेकिन उससे आने वाली आय सिर्फ 1413 रुपए औसत रह गई, जबकि वो 20-21 हजार रुपए साल के कमा लिया करते थे। लेकिन मजदूरी के ऊपर उनकी निर्भरता बढ़ गई। तो जब मैंने अपना पीएचडी का थीसिस लिखा था तो मुझे कोई संकोच नहीं हुआ था ये कहने में कि आंदोलनवादी जो बात कहते हैं वो सच है। लोगों की कुल आय बहुत ज्यादा घट गई विस्थापन की वजह से और उनकी खेती बर्बाद हो गई। उनको जंगल से जो चीजें मिलती थी वो अब नहीं मिलती है और वो लोग स्वावलंबी किसान और जंगलों में रहने वाले लोगों के बजाय बाहर आके मजदूर बन गए हैं। और ये विस्थापन का एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म माना गया। लेकिन जब पिछले साल अपने अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ मैंने इसी सर्वे को दोबारा किया तो काफी हैरतअंगेज रिजल्ट नजर आए, आंकड़े नजर आए। और उसमें ये नजर आ रहा है कि जो समुदाय औसतन खेती अपनी बिल्कुल बर्बाद पाते थे विस्थापन के फौरन बाद, उनकी खेती अब वापस जलने लगी है और लगभग 19,000 रुपए के करीब सालाना वो खेती से कमाने लगे हैं, जो कि पुरानी उनकी खेती की जो आमदनी होती थी उससे 3 गुना ज्यादा है। पहले विस्थापन से पहले 6,000 रुपए के करीब मिलता था और अब खेती से 3 गुना अधिक आय मिलने लगी है। और वनोपज भी, जबकि ये लोग जंगल से दूर आके बसे हैं, लेकिन कुछ वनोत्पाद जो जंगलों में नहीं पाए जाते लेकिन खुले मैदानों में पाए जाते हैं, जैसे कि बेर, डॉली, बिलैया, इस तरह के प्रोडक्ट्स को वो अभी भी जमा करते हैं और उनको बेचते हैं और औसत आय उससे उनको आने वाली जो है लगभग 4,000 रुपए के करीब है। और अगर आप उनकी मजदूरी पे निर्भरता देखते हैं तो वो भी बढ़ गई है, लेकिन उसको मजबूरी की तरह भी देखा जा सकता है और एक मौके की तरह भी देखा जा सकता है कि क्योंकि अब वो सड़क के करीब हैं, दूर क्षेत्रों में जा सकते हैं, तो वो मजदूरी से पहले जहाँ 3,000 रुपए कमा पाते थे अब 9,500 रुपए कमा पा रहे हैं औसतन। तो कुल आय का जो फिगर है वहाँ ये नजर आ रहा है कि विस्थापन से पहले जितनी आमदनी लोगों को होती थी औसत आमदनी उस लेवल तक आ चुकी है वापस और शायद उससे थोड़ी बढ़ ही गई है। तो ये जो सवाल इसमें से निकल के आते हैं तो इससे हम क्या माने? इससे हम ये माने कि विस्थापन से होने वाला नुकसान टेम्पररी नुकसान है और उसको लोग बाद में उसकी भरपाई कर लेते हैं, या कि हम ये माने कि लोग ये जो आय पा रहे हैं ये और आय के स्रोत भी बदल रहे हैं, ना सिर्फ टोटल इनकम बदल रही है मगर उसके स्रोत भी बदल रहे हैं। तो इससे जो पुराने विचार हैं, जो पुरानी थियरीज हैं, चाहे वो प्रबंधनवादी हो चाहे वो आंदोलनवादी हो, उसके ऊपर और शोध करने की जरूरत नजर आती है। दूसरी चीज जो इसमें से निकली वो और भी चौंकाने वाली है। तो टोटल इनकम, कुल आमदनी को देखने के अलावा हमने एक और प्रयत्न किया कि आमदनी को हम बांट के देखें कि जो सबसे गरीब लोग हैं, क्योंकि आप ये याद रखें कि ये औसत आय है, एवरेज इनकम है, इससे हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये किसके पास जा रही है, अमीर आदमी के पास जा रही है कि गरीब के पास जा रही है। जो इसका जो बंटवारा है लोगों के बीच में, समुदाय के बीच में, वो किस तरह से हो रहा है। तो उसको जानने के लिए हमने कोशिश की कि हम लोगों को 4 ग्रुप में बांटते आय के हिसाब से। जो सबसे ऊपर सबसे ज्यादा कमाने वाला 25%, उसके बाद का, और इस तरह करते हुए सबसे नीचा 25%, तो जिसको क्विंटाइल अंग्रेजी में कहते हैं। और अगर हम उसमें देखें कि विस्थापन के पहले, विस्थापन के फौरन बाद और विस्थापन के 10 साल बाद क्या हुआ, तो जो रिजल्ट नजर आते हैं वो मैं आपको अगली स्लाइड में दिखा रही हूँ। और उससे जो निकल रहा है वो ये है कि विस्थापन का प्रभाव लोगों पे बहुत अलग अलग किस्म का पड़ता है और हर विस्थापित व्यक्ति ना तो नुकसान खाता है और ना ही हर विस्थापित व्यक्ति फायदा ले पाता है। यानी कि विस्थापन का और पुनर्वास का पद जो है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है और एक ही रास्ते का अनुगमन सब नहीं कर रहे हैं। तो ये है हमारा रिजल्ट जो हमने 4 गुटों में बांट के देखा। तो और इसमें आप पाएंगे कि नीले रंग का जो सबसे पहला स्लाइड आपको नजर आ रहा है, पहला ऊंचा वाला,
उसमें आपको दिखेगा कि फर्स्ट क्विंटाइल यानी कि इस क्षेत्र के सबसे जो प्रभावशाली और सबसे ज्यादा सक्षम लोग थे आर्थिक रूप से, वे जब सैंक्चुरी के अंदर रहते थे वो लोग, तो उनकी औसत आय काफी ऊंची थी, 80,000 रुपए के करीब थी, जबकि एवरेज इनकम पूरे समुदाय की 31,000 रुपए थी, तब उनकी 80,000 तक थी। और जब विस्थापन हुआ तो उसके बाद उनकी इनकम काफी घट गई, उनकी आय घट के 20,000 से भी कम आ गई। तो सबसे अमीर आदमी को भी विस्थापन का काफी नुकसान हुआ, गरीब को तो हुआ ही। लेकिन विस्थापन के बाद उन्होंने धीरे धीरे अगले 10 सालों में अपनी स्थिति को वापस सुदृढ़ कर लिया, और अब जो उनकी आय है वो शायद जब वो कुनो सैंक्चुरी में रहते थे, अभयारण्य में रहते थे, उससे कहीं ज्यादा है। तो उनका रास्ता तो ये है। अगर हम सबसे गरीब समुदाय को देखें तो कहानी अलग हो जाती है, और उसमें हमें पता चलता है कि वो समुदाय विस्थापन के पहले भी बहुत गरीब था, उनकी आमदनी बहुत कम थी, विस्थापन की वजह से उन्होंने काफी चोट खाई और उससे वो अब तक उभरे नहीं है। लेकिन जो बीच के 50% लोग हैं, 25% से 75% वाले इनकम कैटेगरी के लोग हैं, उनके साथ विस्थापन के बाद धीरे धीरे आजीविका वापस ऊपर उठनी शुरू हुई है। और इसमें अभी और शोध की जरूरत है कि किन कारणों से कुछ लोग ऊपर उठ पाए। और दूसरा ये कि ये कौन लोग हैं जो पहले क्विंटाइल में थे, क्या वो इस इलाके के आदिवासी थे या आदिवासियों के अलावा अन्य समुदाय हैं वो थे, जो सबसे नीचे रह गए वो कौन लोग थे। और इन विषयों पे आगे शोध करने से इस मुद्दे के ऊपर प्रकाश डाला जा सकता है। और मेरा मानना ये है कि ये शोध बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमें जो पुराना नजरिया है विस्थापन और उसके प्रभाव के बारे में, उसको दोबारा से देखने के लिए काफी डेटा भी मिलता है और सोचने के लिए काफी मौके मिलते हैं। दूसरा मेरा जो शोध था वो मेजबान समुदाय के ऊपर हुए हुए असर का था। तो ये अगरा गांव है जिसके अंदर रह के मैंने अपना शोध कंप्लीट किया था, और यही वो गांव है जहाँ पे जो महेश बता रहे थे कि जहाँ हम लोग स्कूल चलाते हैं और इस क्षेत्र के लोगों के साथ शिक्षा का प्रचार प्रसार करने की भी कोशिश करते हैं। तो अगरा गांव जो है उसके आसपास लाके 24 गांव बताए गए। जब इन 24 गांवों को यहाँ लाके बताया गया तो उनकी आमदनी के स्रोत एकदम से घट गए, क्योंकि उनके आसपास का जंगल जो है वो खेत बन गया कुछ लोगों के लिए, उनके आसपास के सारे संसाधनों का हनन हुआ। तो मेजबान समुदाय जबकि वहीं बैठा रहा जहाँ वो था, उसका फिजिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, उसका आर्थिक विस्थापन हुआ। तो उसकी वजह से औसतन उनके संसाधनों में काफी कमी आई। लेकिन अगर हम उसको भी समुदाय के हिसाब से बांट के देखें तो हम पाते हैं कि ग्राम अगरा के आदिवासी परिवारों में से कुछ परिवार जो है उन सब परिवारों के ऊपर असर एक जैसा नहीं है। कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्होंने विस्थापित लोगों के आने की वजह से वहाँ की पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ गई, सड़कें आई, मोबाइल फोन आए, नया स्कूल आया और भी कई सुविधाएं आई, तो कुछ लोगों ने उसको लेके अपना रास्ता निकाला और अपनी आय के साधन बढ़ाए। लेकिन कई और लोग इस तरह के थे जिनकी आजीविका पे नकारात्मक असर पड़ा। तो जब हम इस को डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं तो ये पता चलता है कि अगरा में भी अलग अलग तरह के समाज पाए जाते हैं। यहाँ पे आदिवासी भी रहते हैं, यहाँ पे हरिजन बस्ती भी है, यहाँ पे ब्राह्मण हैं, बनिए हैं, कई समाजों के लोग रहते हैं। लेकिन हर एक समाज में से हम पाते हैं कि कुछ लोगों को विस्थापन से, अधिकतर लोगों को विस्थापन से नुकसान हुआ, लेकिन कई इस तरह के लोग निकले जिन्होंने इससे फायदा उठा के और अपना रास्ता आगे का निकाल लिया। जैसे कि आदिवासियों में और हरिजनों में ज्यादातर लोग 4 या 5 गाय बैल इस तरह के अपने पास रखते थे, क्योंकि आसपास जंगल था, आपको आराम से चारा मिल जाता था। और आज की तारीख में अधिकतम परिवारों के पास कोई भी मवेशी नहीं है। तो सीमांत मवेशी, मार्जिनल हर्डर्स जिनको आप कह सकते हैं, तो उनके नंबर में काफी कमी आई, क्योंकि लोगों के पास संसाधन नहीं थे, जंगल नहीं था जिसमें वो उनको चरने को भेज सकते थे। लेकिन हमने ये भी पाया कि कुछ आदिवासी परिवार ऐसे निकले जिन्होंने मवेशी पालन को अपना विशेषज्ञ कार्य बना लिया
और वो अपने मवेशी अभी भी जंगल में ले जाते हैं, जबकि उनको जंगल में जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन उन्होंने वन विभाग के साथ अपना कुछ सिस्टम बैठा के और जंगल में जाके आजीविका, मवेशी पालन की आजीविका का स्रोत अपने लिए तैयार कर लिया है। तो विस्थापन, मवेशी पालन, आदिवासी, उनके बीच में रिश्ता भी सीधा साधा नहीं है। मेजबान समुदाय में काफी बदल गया है। दूसरी तरफ हमें ये भी समझ आया कि कुछ ऐसे समुदाय जो कभी भी मवेशी पालन नहीं किया करते थे, अपने घर में 2-1 गाय रखते थे अपने घर की व्यवस्था के लिए, जैसे कि कुछ यहाँ के ब्राह्मण परिवार हैं जो मवेशी पालन नहीं किया करते थे बड़े पैमाने पे, लेकिन अब उनमें से 2 या 3 परिवार ऐसे हैं जो 300 और 400 भैंसे रखते हैं और उन्होंने भैंसों के टेम्पररी कैंप, जिसको वहाँ पे खिरकाई कहा जाता है, वो बना लिए हैं आसपास के रिजर्व फॉरेस्ट में और उसको चलाने का उनको उसकी इजाजत तो नहीं है, मगर अगर आप खिरकाई बनाते हैं तो उसमें भैंस पालते हैं और उसमें घी वगैरह निकलता है, तो अगर आप 1-2 टिन घी के दे देते हैं तो आपको नजरअंदाज किया जा सकता है कि आपकी खिरकाई वहाँ पे जंगल में बनी हुई है। तो ऐसे समुदाय जो मवेशी पालक नहीं थे वो बन गए हैं, उसमें से आजीविका कमा रहे हैं। कई लोग जो पहले धंधा नहीं करते थे दुकानों का इस प्रकार का, वो अब दुकान चलाते हैं। अगरा जो कि जिसमें 3 या 4 दुकानें हुआ करती थी, मुश्किल से चाय की, अब वहाँ पे एक काफी बड़ा सा बाजार है जो ये पूरे विस्थापित समुदाय को सर्विस करता है और उसको किंग्स मार्केट अगरा का नाम दिया गया है। तो अलग अलग तरह के यहाँ पे बदलाव आ रहे हैं और इनको समझने के लिए मेरे ख्याल से एक वैकल्पिक मॉडल की जरूरत है। हम सिर्फ प्रबंधनवादी के विस्थापन से नुकसान होता है और अच्छी नीतियों से उसकी भरपाई की जा सकती है, ये भी नहीं मान सकते, या विस्थापन के पहले सब कुछ अच्छा था और इसकी वजह से लोग स्वावलंबी नहीं रह पाए और अब उनका नुकसान ही हुआ है, ये भी नहीं मान सकते आंदोलनवादियों की तरह, बल्कि हमें इसको देखने के वैकल्पिक नजरिए अपने लिए ढूंढने होंगे। और इनमें से एक नजरिया जो मैं आपके सामने आखिरी आज पेश करना चाहूंगी वो है कि हम अगर समाजशास्त्र की अन्य थियरीज को देखें, जो खेती में होने वाले परिवर्तनों के बारे में थियरीज हैं या जंगलों और खेती के बीच के रिश्ते के बारे में थियरीज है, उनको देखें तो उनमें से हमें इसके बारे में कुछ इनसाइट, कुछ ज्ञान मिल सकता है। तो एक जो चीज मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ वो ये है कि, और ये मेरा मुझे लगता है कि ये नजरिया विस्थापन और विकास के मुद्दे को समझने में काम आएगा, और वो ये है कि निष्कासन, विस्थापन से होने वाला एक्सक्लूजन, संसाधनों का एक्सक्लूजन कई स्तरों पे होता है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होता है कि बड़े बड़े विदेशी औद्योगिक देशों की कंपनियां आके और विकासशील देशों में अपनी फैक्ट्री सेटअप करती हैं, जिसकी वजह से लोगों का विस्थापन होता है। तो एक तो इसको सबसे बड़े स्केल पे, ग्लोबल स्केल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्केल पे देखा जा सकता है, जहाँ पे जो बहस है वो औद्योगिक देशों और उद्योगशील देशों की प्रायोरिटीज के बारे में है। दूसरा, इसको राष्ट्रीय स्केल पे देखा गया है, पैमाने पे देखा गया है, जहाँ लोग खास के आंदोलनवादी लिटरेचर में देखा जाता है कि वो ये कहते हैं कि विस्थापन के फायदे शहरी लोगों को मिलते हैं, उद्योग को मिलते हैं, इसका नुकसान ग्रामीण क्षेत्रों को होता है, खेती वालों को होता है, जंगल में रहने वाले लोगों को होता है। पर अगर हम इससे नीचे प्रांतीय यानी कि रीजनल या एकदम लोकल गांव के स्केल पे आके इसको देखें तो हमें पता चलेगा कि ये जो कहानी है थोड़ी कहानी में ट्विस्ट आ जाता है थोड़ा सा, और वो इसलिए है कि हम पाते हैं कि एक्सक्लूजन यानी कि निष्कासन कई स्केल पे हो रहा है, और इसमें से एक स्केल ऐसा है जिसकी बात हम बहुत कम करते हैं, जो है गांव के स्तर पे या इवन हाउसहोल्ड के स्तर पे, एक परिवार के स्तर पे कुछ लोगों को अगर रिसोर्स या संसाधन के लिए एक्सेस मिल रहा है तो कुछ और लोगों का निष्कासन उससे होता है। और क्योंकि इसको जो ये मैंने आपको अभी ढांचा दिखाया था, जो तान्या ली का बनाया हुआ ढांचा है, जो 2011 की एक किताब है जिसके अंदर इसका उन्होंने विश्लेषण किया है, पावर्स ऑफ एक्सक्लूजन उस किताब का नाम है। तो उसमें वो ये पाते हैं कि जो
अंतरंग स्तर पे इंटीमेट एक्सक्लूजन होते हैं, परिवार के स्तर पे, गांव के स्तर पे, वहाँ आप ये पाते हैं कि कोई भी चेंज, कोई भी परिवर्तन जब एक क्षेत्र में आता है, चाहे वो प्रोजेक्ट हो, चाहे वो अभयारण्य हो, कोई भी विस्थापन हो, तो उससे कुछ लोग फायदा निकालते हैं और कुछ लोग नुकसान उठाते हैं। और ये जो अंतरंग स्केल पे हो रहा है, इस इंटीमेट एक्सक्लूजन की वजह से आप पाएंगे कि कोई भी परियोजना, कोई भी प्रोजेक्ट एक साथ गरीबी और संपन्नता दोनों को जन्म दे रही है। और शोध करने का विषय ये है कि कौन वो लोग और समुदाय और सेगमेंट्स हैं जिनको संपन्नता का रास्ता मिल रहा है और कौन से वो लोग हैं जिनको गरीबी का नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इसको देखने के लिए हमें अंतरंग स्केल के ऊपर, इंटीमेट स्केल के ऊपर, गांव, परिवार, इस स्तर पे जाके शोध करने की जरूरत है। जो आंदोलनवादी लिटरेचर है, जो शोध है, वो ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पैमाने की बात करता है, वो इससे नीचे वाले प्रांतीय पैमाने की बात नहीं करता है। और इस क्षेत्र में शोध करना मेरे विचार से काफी जरूरी है। तो इस पे मैं आज रोकना चाहूंगी। और एक आखिरी जो मैं विचार यहाँ रखना चाहती हूँ, जो मेरे हिसाब से ऐसी पहेली है जिसका अभी मुझे तो नहीं मिला है उत्तर, वो ये है कि जहाँ विकास विस्थापन की पॉलिसीज के बारे में बात की जाती है, वहाँ ये कहा जाता है कि भाई विस्थापन कई लोगों को दरकिनार कर देता है, एक्सक्लूड कर देता है। तो जो नए पॉलिसीज बन रहे हैं वो उन लोगों को इंक्लूड, उनका सम्मिलन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कान्याली को पढ़ें तो उनके हिसाब से किसी को भी इंक्लूड करना, किसी का भी इंक्लूजन, सम्मिलन, किसी और का निष्कासन करके ही रहेगा। जब भी जमीन और संसाधनों का के इस्तेमाल में परिवर्तन होगा, लैंड यूज चेंज होगा, तो वो एक साथ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन दोनों को जन्म देगा। तो ये जो पहेली है, इस पहेली के ऊपर और इस नजरिए से अगर हम शोध करें कि शायद इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के बीच में डिबेट नहीं है, डिबेट ये है कि कौन जुड़ रहा है और वो किसको संसाधनों से वंचित कर रहा है, और इस प्रक्रिया को किस तरह से ज्यादा बराबर बनाया जाए। तो मेरे ख्याल से वो है शोध के वैकल्पिक रास्ते, और उसी में से वो समाधान मिलेंगे जो विकास और विस्थापन के बीच की बहस को शायद किसी तरह के इस विवाद को सुलझाने में आगे काम आएंगे।